My heartiest namaskar, good morning, Jai Shri Krishna, Jai Swami Narayan, especially to the Honorable Chief Minister of our state, Shri Bhupendra Bhai Patel, to the state BJP President, Shri C.R. Patil, Honorable Ministers, Shri Pradeep Bhai Parmar, Shri Jagdish Bhai Panchal, Dr. Rutvish Patel, the Chairman of the United Group, Shri Kamal Kishore Hada, Shri Anil Agrawal ji, Chairman DA Group, and Dr. A.K.S. Suryavanshi. Today we have come together for a wonderful occasion, the Youth Parliament of India into its third session. And with the blessings and wishes of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi, also the Honorable Home Minister of India, Shri Amit Bhai Shah, as Dr. Rutvik said, the foundation has been laid of this Youth Parliament 3 years back. And since its inception, it has brought many youths together to discuss, to debate on issues that directly affect the society, that directly affects the nation. परिस्थिति और संजोग ये हैं कि भगवान ने तो इस पृथ्वी पे सब रिसोर्सेस काफी रखे हुए हैं. There are enough resources for people upon this earth. Today we have the population of 7 billion. If we had 10 billion, if we have 15 billion in future, there are enough resources. But for some reason, they are not well distributed. Today in this youth parliament, I would like to put forward a point that the principal service of the youths of this youth parliament is to ensure equal distribution of natural resources to the last human being upon this earth. ये अगर हम कर पाए तो इसकी बहुत बड़ी सिद्धि, इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि समाज को और देश को प्राप्त हो सकती है. रिसोर्सेस तो काफी है. शायद आपको जान के ताजुब होगा कि द एनुअल डिफेंस बजट ऑफ द वर्ल्ड इज $1,500 बिलियन. कोरोना के वक्त पिछले साल सभी देशों ने मिलाकर 1900 बिलियन डॉलर्स के शस्त्र खरीदे हैं. मतलब पैसे की कमी नहीं है, रिसोर्सेस की कमी नहीं है इस पृथ्वी पे. सभी प्रश्न के सॉल्यूशंस इस पृथ्वी पे हैं, लेकिन बीच में जो मैनेजर्स हैं, हम सब जो व्यवस्थापक हैं, वो इस रिसोर्सेस की अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं कर पा रहे. अदरवाइज देयर आर इनफ रिसोर्सेस अपॉन दिस अर्थ. And India is a young country. When Bill Clinton, as the President of the United States, when he visited India in the year 2000, he visited the high-tech city in Hyderabad. He was addressing such a youth convention in which he said that there are 540 million youths in India. That is 54 crore youths in India in the age group of 15 to 35. Forget 8 hours, forget 6 hours. Even if this 540 million youth of India, they work honestly and ethically, even for 4 hours a day, nobody can stop India from becoming a superpower and a developed nation. भारत, हमारा देश एक विकसित देश बन सकता है, a developed country. भारत, हमारा देश महासत्ता बन सकता है. The onus lies on the shoulders of the young generation. On you all. हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास परंपरा है, हमारे पास संस्कृति है, हमारे पास महान संत, महान ऋषि मुनियों ने हमें जीवन जीने की शैली दिखाई है, हमारे पास अध्यात्म है. ये सभी बातों से दुनिया में कई ज्यादातर देश, उनके पास ये बात नहीं है, वो वंचित हैं. कितने महान विचार दिए हैं. The one thought that can change the world, the one thought which this youth parliament can take all over the world to make India not just a developed country and a superpower, but Jagat Guru. वो एक विचार है वसुधैव कुटुंबकम. The whole world is one family. ये विचार हमने वेदों से पाया है.
ये हमारी संस्कृति में है, ये हमारे खून में है। ये विचार में ताकत है कि पूरे विश्व को एक शांति का स्थल बना पाए। और हमने सिर्फ हमारे शास्त्रों में ये बात लिखी, ऐसी बात नहीं है, हमारे खून में ये बात है। जब पारसीस को वहां से भगा दिया था, पर्शिया से, वे भारत आए, हमने प्रेम से उनको वेलकम किया, प्रेम से आदर से यहां रखा। We have lived this. Nobody in the world has the right to teach India what is secularism. Nobody in the world has right to teach India what is republic. हमारे संस्कृति में, वेद में, अथर्व शास्त्र में, मतलब अथर्व वेद में गणतंत्र शब्द 70 बार प्रयोग हुआ है। 70 times the word republic is used in the अथर्व वेद. Republic word came into existence in the English literature just 200 years back. हम तो ये जीते हैं. The word samiti, the word sabhapati, the word sabha is mentioned hundreds of times in our Veda and Upanishads. So don't teach us democracy. We Indians know democracy since the Vedic times. Don't teach us the word secularism. बिन सांप्रदायिकता हमको सिखाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सत्शास्त्रों में वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज बिन सांप्रदायिकता, सेक्युलरिज्म वेदों की बात है। तो हमारे वेद उपनिषद ने ये बातें हमें सिखाई हैं, ये परंपरा है। आर्थर कॉइस्लर सबसे बड़ा इतिहासकार माना जाता है। द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक में उन्होंने लिखा है, The only way for salvation for the world is the Indian way. पूरे विश्व को अगर उठाना है ऊपर, पूरे विश्व को अगर जागृत करना है, तो आजादी की अमृत महोत्सव पे, ये पर्व पे, यूथ पार्लियामेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे ये विचार, हमारे ये अभिगम, हमारे ये वर्तन जो हमारे सत्शास्त्रों ने हमें सिखाया है, वो विश्व तक ले जाए। The onus lies on you. The onus lies on your shoulders. लेकिन उसके लिए आपको भी तैयार होना बहुत जरूरी है। सिर्फ एकेडमिक से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बुद्धिमत्ता से काम नहीं चलेगा। If you feel that I'm young, energetic, academically qualified, intelligent, talented, I can present myself well, I have attitudes, इतने से नहीं चलेगा। आपको हमारी संस्कृति के अनुसार आपका वर्तन भी चाहिए। सिर्फ बुद्धिमत्ता से यूथ पार्लियामेंट ये विचार विश्व तक नहीं ले जा सकता, वर्तन से ले जा सकते हैं। जो स्वामी विवेकानंद जी ने किया, जो हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने किया। प्रमुख स्वामी महाराज सिर्फ 5 कक्षा पढ़े हुए थे, लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा, भारतीय रहनी सहनी पूरे विश्व तक ले गए। दुनिया में उन्होंने 50 साल में 150 से ज्यादा संस्थाएं बनाई, 1300 इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, मंदिर, कम्युनिटी सेंटर्स, संस्कार केंद्र। आप सभी ने अक्षरधाम यहां गांधीनगर और दिल्ली में देखा होगा। दैट मीन्स एवरी 15th day for 50 years Pramukh Swami Maharaj gifted an institute to the society. And that institute is working today. He initiated 1200 saints like us. More than 800 of them are graduates, postgraduates, chartered accountants, doctors and engineers. More than 150 of them are born American and British citizens. More than 50 saints in our organization, they have come out from, graduated from institutes like Stanford, Harvard, Carnegie Mellon, Yale. तो ये मत कभी सोचना कि इनको कुछ जमा नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं लगा हो इसलिए यहां आ गया। सब कुछ जमा हुआ था, ठीक था, लेकिन समाज की सेवा उत्तम हो सके, पवित्र जीवन जी के उत्तम समाज और देश की सेवा हो सके, प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन नजदीक से देखा इसलिए यहां है। उनका ये शताब्दी महोत्सव है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था कि सिर्फ आपकी बुद्धिमत्ता नहीं चलेगी, बहस करेंगे, डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे, वो बहुत जरूरी है। वी वॉन्ट ऑल टाइप्स ऑफ आइडियाज टू कम आउट,
all types of thought processes in the society. But at the same time, along with your intelligence, academics and talents, you will have to have character. वर्तन चाहिए आपका. वर्तन आपके प्रवचन से ज्यादा तेज, ज्यादा बुलंद आवाज से बाहर निकलता है. So what is that character? First, have excellent academics and honest, ethical hard work in your profession. यूथ पार्लियामेंट में सभी यूथ के लिए प्रथम संदेश ये है, excellent academics and intense hard work with honesty, with ethics, with norms, with disciplines in your profession. मेरे एक मित्र की बात करना चाहूंगा, यशवंत जेठवा उसका नाम. बहुत गरीब परिवार से मुंबई में मलाड में एक छोटी सी कुटिया में वो रहता था. पढ़ाई का शौक था, पढ़ाई की इच्छा थी. प्रमुख स्वामी महाराज ने उनकी व्यवस्था भी सभी कर दी. वे बीएपीएस संस्था के बाल मंडल में, युवा मंडल में आता था. पढ़ाई करते करते यूपीएससी क्रैक की, आईपीएस ऑफिसर बने. देखो, पढ़ाई अच्छी की, बुद्धिमत्ता थी, लेकिन साथ में संस्कार थे. हमारे संस्कृति की रक्षा के लिए, संस्कृति के प्रवर्तन के लिए जो वर्तन चाहिए वो भी था. तो ये यशवंत जेठवा ने क्या काम किया? उनको ओडिशा कैडर मिला, वहां सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट मिला, वहां के वो एसपी बने और वहां नक्सलवाद बहुत प्रवर्तमान था. आई एम टॉकिंग ऑफ थिंग्स लाइक अबाउट मोर देन 15 इयर्स बैक. तो उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई. नक्सल परिवार के बच्चों को, मतलब उस परिवार में से कोई नक्सल बन गया हो, प्रवृत्ति करता हो, उनके बच्चों को पुलिस जीप में स्कूल ले जाते थे. वे पुलिस और सिविलियंस की क्रिकेट मैच शुरू कर दी. पुलिस को इस प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम में सिविलियंस के साथ रखा. तो सिविलियंस को पता चला कि ओके, व्हाट वी आर टॉट दैट दिस आर आवर एनिमीज, दे आर नॉट, दे आर एक्चुअली हियर टू हेल्प अस. और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ओडिशा स्टेट में नक्सलवाद को ऑलमोस्ट जीरो लेवल पर ये आईपीएस ऑफिसर यशवंत जेठवा ले आए. Every youth in this youth parliament, Rutvij, every youth in this youth parliament has this capacity. You have to grow that capacity. और ये यशवंत जेठवा 2.5-3 साल तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एसपीजी में डीजी के रूप में रहे, अभी वापस कैडर में गए हैं. कहने की बात यह है कि हमारे युवा के पास इतनी शक्ति है. If one officer, academically well qualified, intelligent and talented, at the same time deciding to live an ethical life according to the great Indian culture, can change the scenario of a district from Naxalism to normal life, why can't anybody of you do? Can you do? Tell me yes or no. This is a very low voice. Yes or no? With your hands raised. At one go, yes. हम कर सकते हैं. इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, वी कैन डू इट. तो पढ़ाई अच्छी तरह से करना, नीतिमत्ता से काम कर. दूसरी बात है कैरेक्टर में, व्यसन मुक्त जीवन रखना, तो आपकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर डेवलप होंगे. इफ यू सबमिट योरसेल्फ टू एन ऑर्डिनरी टबैको पैशन, इफ यू सबमिट योरसेल्फ टू अ पिंच ऑफ ड्रग, मुख्यमंत्री जी आवाज करवी જોઈએ ને આપણે ड्रग्स नहीं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प है और आज अच्छी तरह से कार्य गुजरात में हो रहा है. और अभी हम साथ में बैठे थे, अभी हम साथ में बैठ के इसके बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे कि एंड देन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुजरात को ड्रग मुक्त करना है, इसके लिए कार्यवाही हो रही है. तो व्यसन से परे रहना, क्योंकि आप व्यसन को सबमिट हो जाएंगे ना, इंटरनल आपकी मॉरल एनर्जी टूट जाएगी. फिर एक व्यसन को सबमिट हो गए और कोई गलत बात को भी सबमिट हो जाओगे, और कोई एंटी फिलोसॉफी को सबमिट हो जाओगे, और कोई एंटी कैरेक्टर को भी आप सबमिट हो जाओगे. डोंट सबमिट योरसेल्फ टू अ रॉन्ग नोशन. और ये भी आप कर सकते हैं. मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूं. यूथ पार्लियामेंट में ऑल ओवर इंडिया आपके कुल सदस्य कितने हैं, पार्टिसिपेंट्स? मोर देन 5,000 तो यहां है ना पूरे भारत में.
हाँ, इन लैक्स है। एक यूथ को, अभी यहां 5,000 है, एक यूथ को गुजरात का एक विलेज दे दो निर्व्यसनी करने के लिए। उस विलेज को आप निर्व्यसनी करना और कर सकते हैं। पाटन जिले का चाणस्मा तालुका का सुनसर गांव, मैं आपको नाम के साथ देता हूं। पूरे गांव में सभी को व्यसन थे। मैं बात कर रहा हूं 10 साल 15 साल पहले की। बीएपीएस के एक वॉलंटियर डॉक्टर पेथाभाई देसाई, वो वहां मेडिकल ऑफिसर में, गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में वहां गए। उन्होंने देखा कि गांव में सब कोई व्यसन कर रहे हैं। और मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज की ये मिसाल है कि व्यसन मुक्त जीवन जीना है, व्यसन मुक्त समाज तैयार करना है। ही स्टार्टेड द डी एडिक्शन कैंपेन। पहले किसी को बात की, उन दोनों ने उसको पकड़ के रिवॉल्वर दिखाई कि ये गांव में आप व्यसन मुक्ति की बात करेंगे तो आप जिंदा नहीं रहेंगे। दे शोड हिम अ रिवॉल्वर। डॉक्टर देसाई केम टू प्रमुख स्वामी महाराज एंड सेड, स्वामी आई एनकाउंटर्ड दिस। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि आप अच्छे काम के लिए जा रहे हो, समाज के उत्कर्ष के लिए जा रहे हो, ये बड़ी भक्ति भी है, भगवान आपकी रक्षा में, आप काम करना। उन्होंने काम चालू रखा और पाटन जिले का चाणस्मा तालुका का ये सुनसर गांव, वो 90% उन्होंने व्यसन मुक्त कर दिया। बीएपीएस का बड़ा मंदिर बना और वहां लोगों ने व्यसन छोड़े। उस व्यसन के जो पैसे बचे, उस पैसे से गांव में कुछ प्रगति हुई, कुछ वाटर टैंक बनी, कुछ रोड रास्ते अच्छे हुए, प्रगति हुई गांव की। तो इफ डॉक्टर देसाई he can de-addict a village Sunsar, I think each and every member of this youth parliament, each and every participant of this youth parliament today, if he or she picks up a village, आपका नेटिव विलेज हो वो पकड़ लो, तो आप कर सकते हो। You can do it। और इस प्रकार के काम से आप में जो नैतिक एनर्जी आएगी, जो आप एनर्जेटिक हो जाओगे, you will be a different personality, you will be a different character। फिर आपको किसी को अपनी पहचान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योर प्रेजेंस विल क्रिएट ऑरास। जब बिल क्लिंटन एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका प्रमुख स्वामी महाराज को मिले थे, दैट इज इन द ईयर 2000। बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट, वन ऑफ द मोस्ट कैरिस्मेटिक प्रेसिडेंट्स ऑफ यूएस। ही मीट्स प्रमुख स्वामी महाराज, सैफरन क्लेड पर्सन, 80-year-old प्रमुख स्वामी महाराज could not speak a single word in English. How can he get impressed? In the 22-minute meeting, Bill Clinton said, the integrity that I saw in the eyes of Pramukh Swami Maharaj, I have never seen in anybody's eyes. How can the President of America, the most powerful person of the world, get impressed from an 80-year-old non-English speaking saint of India? Character. From his eyes, Bill Clinton said, I have never seen such integrity in anybody's eyes. And Pramukh Swami Maharaj in his traditional way just caught hold of his hand and said, in a traditional Gujarati, ke Sahib amaru Gandhinagar ma Akshardham jowa mate avjo. Bill Clinton, when he was like, one of our saints interpreted it and said he's personally inviting to visit Akshardham at Gandhinagar. Bill Clinton promised that when you are inviting, I will come. And he did come. Character का एक प्रभाव होता है। तो ये व्यसन से बचते रहना। और ये डिजिटल डिवाइसेस भी आपके व्यसन है। डिजिटल डिवाइसेस भी आपके व्यसन है। इसमें से डिजिटल रोग होते हैं। 15, 17, 18, 19 साल के लड़के लड़कियों को हॉस्पिटल्स में एडमिट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ डिजिटल डिजीजेस। फैड, FAD फैड, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। अभी 1 महीने पहले दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 2 भाइयों को एडमिट करना पड़ा क्योंकि दे वर सफरिंग फ्रॉम फैड, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। तो हॉस्पिटल नहीं जाते थे, उस वक्त भी उनके लैपटॉप में फेसबुक चालू था क्योंकि फेसबुक अगर बंद हो जाए उनके हार्मोन सीक्रेशंस बदल जाते थे। The World Health Organization has officially declared FAD as a mental disorder. FOMO होता है, FOMO, fear of missing out। आपके फ्रेंड्स फेसबुक पे पोस्ट करते हैं कि हम इकट्ठा हुए थे, पार्टी हुई थी, खाया पिया, गाना गाया, और आपको लगता है अरे यार मैं रह गया, मुझे नहीं बुलाया, क्यों नहीं इनवाइट किया होगा। रात को 2 बजे तक नींद नहीं आती है और यंगस्टर्स को स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है।
What the hell are you doing with your lives? These gadgets are made to serve you. The reverse has happened. You have become the slaves of this gadget. हम भी iPad, लैपटॉप, मोबाइल्स का यूज करते हैं. Best for communication, best for your work. But mind well, don't cross the limits. प्रमुख स्वामी महाराज को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर किसी पत्रकार ने पूछा था कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंटरनेट है, गैजेट्स हैं, वो आशीर्वाद है या श्राप है? प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने अनुभव से त्वरित उत्तर दिया, विवेक पूर्ण उपयोग करे तो आशीर्वाद है, विवेक चूक गए तो श्राप है. आपके कैरेक्टर के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये डिजिटल उपयोग मिनिमम कर देना. डोंट अलाउ इट टू, बिकॉज दिस हैज द पावर टू टेक अवे ऑल योर टाइम. तो दूसरी बात यह है, ड्रग डिजीजेस एंड डिजिटल डिजीजेस. तीसरी बात है संयम रखना जीवन में. यूथ पार्लियामेंट में आए हो, यूथ पार्लियामेंट के सभ्य हो, एक एक यूथ शुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्वामी विवेकानंद. आप अपने आप को सिर्फ पार्टिसिपेंट मत समझना, आप अपने आप को यूथ पार्लियामेंट के सदस्य मत समझना, आप अपने आप को भारत देश के एम्बेसडर समझना. You, each and every youth of India is an ambassador of India. Wherever he steps, wherever he goes, whomever he meets, he is representing Bharat. Bhupendra bhai, baat sachi? He is representing the country. He is representing the great culture. So संयम जीवन में रखना. Just 3 days back, you might have read in the newspaper, there are annual 3 lakh deaths because of AIDS in India, acquired immune deficiency syndrome. तो जीवन में कैरेक्टर में ये संयम भी रखना, वरना you can become zero from hero within seconds. बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स इसके लिए जॉब they lose it. ये मी टू मूवमेंट इसलिए चला है. भविष्य में गैजेट्स बढ़ जाएंगे, सी टू मूवमेंट भी आएगी. क्या आपने कुछ देखा वो दृष्टि सही थी या बुरी थी? वो 5-15 सॉफ्टवेयर उस पर लगाएंगे तो पता चलेगा रेड लाइन आई, बुरी नजर थी. हाँ, इसी के भी सॉफ्टवेयर निकलेंगे. आईटी पीपल कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग. बट आपके जीवन में संयम होगा तो एक और ताकत. Our soul has containers and containers, tons and tons of internal energy. आप संयम से जिएंगे, नीति नियम से जिएंगे, एथिक्स से जिएंगे, it will be a different power. You will be able to create. ये ताकत हमें डेवलप करनी है. तो ये संयम रखना, वरना ये सब एड्स जैसे रोग तो ऐसे हैं, कितनी भी सरकार व्यवस्थाएं करेगी हॉस्पिटल्स की, कितनी भी समाज सेवा संस्थाएं, एनजीओस कितना भी प्रयत्न करेगी, तो भी एड्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगी. प्रमुख स्वामी महाराज को 1991 में हमने अमेरिका में बड़ा कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया मनाया था. पूरा भारत खड़ा किया था वहां. इट वाज विजिटेड बाय 1.1 मिलियन अमेरिकन्स एंड दे वर फैसिनेटेड बाय द एग्जीबिशन जो हमने वहां रखा था, ब्यूटीफुल बॉर्डरलेस वर्ल्ड, सीमा रहित विश्व, जो हमारे वेद उपनिषद की भावना है वो वहां रखी थी. वहां डॉक्टर राज बोथरा आए थे. वो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री थे डॉक्टर राजीव गांधी, उनके साथ डून स्कूल में पढ़े हुए थे, उनके क्लासमेट थे. डॉक्टर राज बोथरा ने उस वक्त इंडिया एड्स फाउंडेशन चालू किया था और बोलते थे कि हम अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, रिहैबिलिटेशन कोर्स कर रहे हैं, रिहैब सेंटर्स डिजाइन किए. वी आर नॉट एबल टू कर्ब दिस मिनेस्कल एड्स. स्वामी जी, आपके पास भारतीय संस्कृति के अनुसार कुछ उत्तर है एड्स के लिए? प्रमुख स्वामी महाराज ने त्वरित उत्तर दिया था कि हमारी संस्कृति में, हमारे सच शास्त्र में एड्स के लिए एक उत्तम मेडिसिन है. जो हम मानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमारे सच शास्त्रों में बात लिखी है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी. पुरुष के लिए एक स्त्री और स्त्री के लिए एक पुरुष. वन लाइफ वन पार्टनर. इसके सिवा पृथ्वी पे एड्स के लिए कोई इलाज नहीं है. Thousands of hospitals will go fail. Thousands and thousands of social services will go fail. Thousands of youth parliaments will go fail. अगर हमारे सच शास्त्र के नीति नियम के अनुसार आपने अपना जीवन नहीं बनाया तो ये एड्स को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे. तो तीसरी बड़ी बात है यूथ पार्लियामेंट में यूथ को यह संदेश है, संयम जीवन में रखना. हम स्वामी विवेकानंद, प्रमुख स्वामी जैसे महान संत के वारिस हैं, तो ये रखना है. और आखिर बात यह करनी है, सेवा भी श्रद्धा से करना.
वी आर born टू सर्व. जो कुछ सेवा हो, समाज की जो कुछ सेवा आपको मिले, ये यूथ पार्लियामेंट की एक व्यवस्था में आपको जिस समय जो भी सेवा मिले, श्रद्धा से करना, उत्साह से करना. अपने पेट के लिए तो एनिमल्स ऑल्सो दे रन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. अपनों के लिए एनिमल्स ऑल्सो दे रन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. समथिंग सेल्फलेस, some part of you selfless, some time of you selfless, some energy of you selfless. Now it is medically prescribed 2 hours of selfless service a week. It is medically prescribed for your better physical, mental and emotional health. तो सेवा श्रद्धा से करना. और शास्त्र, मंदिर और संत में हमेशा विश्वास रखना कि ये बात सही है, ये बात अच्छी है, मेरे उत्कर्ष के लिए. कितना भी वेस्टर्न मीडिया या कितने भी ऐसे विचारधारा आए कि भारतीय संस्कृति के जो मुख्य 3 आधार स्तंभ हैं, शास्त्र, मंदिर और संत, इन 3 के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहना. चाहे आपको उसके बारे में डिटेल पता हो ना हो, लेकिन नास्तिकवाद कभी आने मत देना. इसलिए IIM अहमदाबाद ने अभी लास्ट मंथ में मैनेजमेंट कोर्सेज फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता इंट्रोड्यूस किया. सब कुछ हमारे शास्त्रों में है. एवरीथिंग इज प्रैक्टिकली एंड साइंटिफिकली प्रूव्ड. आई टेल यू that more than 50,000 research papers have been published by scientists, that is man of science, not by man of religion, on how this religious texts, these scriptures, these devotional methods from prayers to chanting the holy name can give you physical, mental, emotional benefits in life. 50,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स तैयार हुए हैं. ये साइंटिस्ट ने किए हैं, हम लोगों ने नहीं. So everything in our scriptures is scientifically proved. श्रद्धा रखना. एक छोटी सी बात 1 मिनट में करके मैं पूरा करूंगा. लोग कई बार बोलते हैं ये मंदिर की समाज में क्या व्यवस्था है, क्या आवश्यकता क्या है. 2001 में जब कच्छ में अर्थक्वेक आया था, 26 जनवरी को सुबह 8:45 बजे, तब प्रमुख स्वामी महाराज ने फोन करके कहा कि रसोई घर चालू कर दो. 3 घंटे के बाद 12 बजे 17,000 people who were homeless on streets took their lunch at BAPS Mandir in Bhuj. And thereafter, we continued this for 10 months. Every day, 3 meals combined. 85,000 people used to have meals at our place. उस वक्त इजराइल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम आई थी, हम लोग वहां थे सेवा में. आई एम टॉकिंग ऑफ 2001. हम तो वहां पहले दिन पहुंच गए थे. इजराइल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम आई थी, मिस्टर शॉलोम आए थे, उनके हेड थे. मोबाइल आईसीयू लेके आए थे. वहां भुज में शास्त्री मैदान में उन्होंने मोबाइल आईसीयू खड़ा किया था. तो हम लोग उस वक्त देखने गए थे कि मोबाइल आईसीयू होता है. 20 साल पहले की ये बात है. फिर वे हमारे कैंप पे आए. व्हाट आर यू पीपल डूइंग? वी सेड वी आर प्रोवाइडिंग हॉट मील्स, फ्रेश मील्स, वी आर प्रोवाइडिंग अदर नेसेसिटीज टू द पीपल. मिस्टर शॉलोम ने कहा इजराइल गवर्नमेंट हैज सो फार नेवर थॉट ऑफ गिविंग हॉट मील्स ड्यूरिंग डिजास्टर्स. लेट मी कम टू योर कैंप. और वहां आया, देखा. वहां से उन्होंने सैटेलाइट फोन से इजराइल गवर्नमेंट को फोन किया कि देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन हियर इन गुजरात हु इज प्रोवाइडिंग 85,000 मील्स अ डे ड्यूरिंग अर्थक्वेक टाइम्स, ड्यूरिंग डिजास्टर. ये हमारे युवाओं की शक्ति है, कर सकते हैं हम. तो ये श्रद्धा से करेंगे. मंदिर से इतने सारे काम होते हैं. मंदिर हेल्प्स इन इकोनॉमी. पता है आपको 35 लाख मंदिर है भारत में. 10 की एम्प्लॉयमेंट गिन लो. कोई मंदिर में एक पुजारी होता है, कोई मंदिर में अक्षरधाम होता है तो 800 होते हैं, रामेश्वर होता है, जगन्नाथपुरी होता है, हजारों होते हैं. जस्ट 10 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट्स पर मंदिर. 35 lakhs, 3.5 crore people are employed in mandir. It is a huge industry. I am just talking of the base economic. Indirect employment गिन लो. किसी ने यहां से बस निकाली जगन्नाथपुरी जाने के लिए, बीच में जहां रुकी वहां इकोनॉमी चर्न हुई. मंदिर के बाहर जो बैठते हैं, आर्टिकल्स बेचते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट गिन लो. मोर देन 5 crore people. तो कहने की बात यह है कि इनमें श्रद्धा रखना. तो आज ये यूथ पार्लियामेंट में सब युवा यहां आए हो. 4 बातें मैंने आपको बताई. फर्स्ट, एक्सीलेंट एकेडमिक्स एंड ऑनेस्ट एथिकल हार्ड वर्क इन योर प्रोफेशन. सेकंड, प्योरिटी ऑफ योर पर्सनल लाइफ.
Third, selfless service. And fourth, faith in scriptures, mandirs and saints. That is the great Indian culture. भारत जगत गुरु था, फिर से जगत गुरु बनाना है. ऊपर तो व्यवस्थाएं हो रही है. We have to work at the grassroots level. So all my prayers today, especially to the organizers of the Youth Parliament of India, Dr. Utwij, और हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी भी पधारे, उन्होंने अपना समय दिया. सभी मिनिस्टर्स भी यहाँ पधारे, सभी यहाँ आगेवान लोग भी पधारे, आप सभी युवा भी पधारे. आप सभी के लिए प्रार्थना है, under no circumstances fall back from the great Indian teachings. Thank you very much, and my all prayers for all of you.